Back in the days, it was so much more difficult to get into this sector because, firstly, it was expensive. Secondly, there was no job security. There was no growth like what is happening today. Pilots are refusing to get back to work until the order is completely withdrawn. That a number of these licenses which are under the scanner were issued during your time as head of the DGCA. जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। 2014 came a leader who brought the skies down to the feet of a common man, who believed that the open skies should be accessible to all. His vision was not just about transportation, it was about transformation. What happened in the last 10 years that made India's civil aviation industry the world's third largest? India's aviation industry that has changed the trajectory of nation's growth. Hamare airports have doubled from 74 in 2014 to 157. 2023-24 में our airports handled a whopping 37.6 crore passengers, which is a 15% increase year on year. ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर इंडिया बन गया है तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। पर ये सब हुआ कैसे? It's quite clear that India is one of the fastest growing travel markets in the world. About a 7% compound growth rate internationally, about a 10% compound growth rate domestically. कहानी शुरू होती है 2016 से, जब देश को मिली द न्यू सिविल एविएशन पॉलिसी, जिसने हर आम नागरिक का उड़ान का सपना पूरा किया। पुराने ने 520 रूल को अमेंड किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। हेलीकॉप्टर्स और चार्टर प्लेन्स के लिए नए रेगुलेशंस आए और एविएशन एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग को भी प्रायोरिटी मिली। Until now, 1.43 crore people have availed the benefits of Udan scheme. But 520 rule में आखिर क्या amendment हुआ? 520 rule is an important regulation जिसमें एयरलाइंस को इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए कम से कम 5 साल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और कम से कम 20 एयरक्राफ्ट की फ्लीट जरूरी थी। ये रूल 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एयरलाइंस को इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने से पहले सफिशिएंट एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज मिल सके। लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने 520 रूल को अमेंड किया। Now, carriers don't need to have completed 5 years on domestic routes. However, they still need to either operate at least 20 aircrafts or reserve 20% of their fleet for domestic routes, whichever is higher. इस बदलाव से नए एंट्रेंट्स को मार्केट में एंट्री मिलने लगी और हेल्दी कंपटीशन बढ़ गया। Since 2014, there have been several new entrants in the Indian civil aviation industry, like AirAsia India, Flybig, Zoom Air, Star Air, जिससे आम नागरिक को मिले low airfares, more choices, service quality and regional connectivity. Would you believe me if I tell you that India has the highest number of low-cost carriers in the world? As of April 2024, 78.4% of India's domestic flights were operated by LCCs. So basically, India tops the list when it comes to choosing affordable flying options. गवर्नमेंट का एक मेजर स्टेप है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग और एफिशिएंसी से एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस और भी स्मूथ और मॉडर्न बन रहे हैं। इंडिया के 14 मेजर एयरपोर्ट्स ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। 21 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। इनमें से 12 एयरपोर्ट्स अभी ऑपरेशनल हैं। इनफैक्ट 2022 वो साल था when India witnessed the first major privatization in 2 decades of the loss-making Air India. We have a massive opportunity to scale up international connectivity and connect India to more points around the world, not just because of India's own growth rate, the increasing attraction of India as not just a tourism destination but a key component of the global supply chain.
as much as I support the philosophy of digital native, and again, being in India, it's probably, if digitization is part of almost the DNA of the country itself, I'm a big believer in that. जी हाँ, अब बात चाहे डिजी यात्रा की हो या डिजी स्काई की, इंडिया's digital prowess has taken the world by surprise every time. डिजी यात्रा ऐप के साथ आपकी जर्नी शुरू होती है एयरपोर्ट पर कदम रखते ही। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आपकी आइडेंटिटी सेकंड्स में वेरीफाई हो जाती है और पूरा प्रोसेस फ्रॉम एंट्री टू बोर्डिंग सीमलेस और इजी हो जाता है। बस डिजी यात्रा ऐप इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर पर क्लिक कीजिए, आधार अपलोड कीजिए, अपना सेल्फी कैप्चर कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। Over 55 lakh users have already downloaded the app and more than 3 crore passengers have used Digi Yatra to travel. पर ये डिजी स्काई क्या है? डिजी स्काई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ड्रोन रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन को सुपर इजी बनाता है, सेफ्टी और कंप्लायंस को इंश्योर करता है। ये आपके ड्रोन्स को सीमलेसली ऑपरेट करने में मदद करता है। ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए ये एक गेम चेंजर है। द लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021 have really opened up the skies for drones in India. It's very interesting to note that the aviation industry has a multiplier effect. It has output multiplier of 3.25 and employment multiplier of 6.10. इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि every 100 rupees invested in air transport contributes 325 rupees worth of benefits, and every 100 direct jobs in air transport results in 610 jobs in the broader economy. We are talking about 100 million passengers by the end of this year. This is going to rise to 400 million passengers by the year 2030. We need pilots for this growth. एक समय था जब एविएशन में पायलट्स और क्रू की शॉर्टेज थी, लेकिन आज एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग पे फोकस करके हम इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिया के पास एडिक्वेट पायलट्स और क्रू हो। अब हमारे स्काईज है रेडी फॉर टेक ऑफ विद स्किल्ड प्रोफेशनल्स। 2022 में इंडिया ने आज तक के हाईएस्ट कमर्शियल पायलट लाइसेंसेस इशू किए, जो 2014 के डबल हैं, और उनमें से 15% विमेन पायलट्स हैं। That is almost 3 times the global average, which makes India the only country to have the highest number of female pilots. यही नहीं, जनवरी 2021 में ऑल विमेन क्रू ने तय की भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू बेंगलुरु। 16,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया 17 घंटों में और बनाया एविएशन सेक्टर में नया रिकॉर्ड। Best part about tier 2 and tier 3 candidates is that they have a zeal to work. इंडिया की पायलट ट्रेनिंग भी टॉप नॉच है। We have 57 aircraft maintenance engineer training institutes that train around 3,500 students yearly. यही नहीं, आज देश में 35 से ज्यादा फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। मैंने पहले काफ़ी जगह पूछा, पर फीस बहुत ज़्यादा थी और मैं एक नॉर्मल सी फैमिली से आती हूँ तो वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर मुझे मेरे किसी फ्रेंड्स ने बताया, फिर मैं यहाँ पे आई, मुझे स्टाफ बहुत अच्छा लगा, टीचर्स के एक्सपीरियंस से, गाइडेंस से, सारी चीज़ों में हेल्प हुआ है। China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. The COVID-19 pandemic had a devastating impact on the global aviation sector. Passenger traffic reduced by 60.2% globally in 2020. लेकिन इंडिया की रिकवरी रही इम्प्रेसिव। इंडिया के डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक ने 2020 में 48.8% ड्रॉप देखा, जो ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस और इंडिया ही दोनों ऐसे इकोनॉमीज थे जहां एविएशन सेक्टर ने बाकी कंट्रीज से तेज रिकवरी की। आपको ये जान के खुशी होगी कि 2024 में द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल हैज रैंक्ड इंडिया ऑन 8th पोजीशन फॉर इट्स टूरिज्म सेक्टर्स इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मूविंग अप फ्रॉम द प्रीवियस 10th पोजीशन। भारत अपने रिच कल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज से एक प्रेफर्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है।
हाल ही में पार्लियामेंट ने भारतीय वायुयान विधेयक बिल को पास किया, जो 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस करता है। अब ये बिल भारत को ग्लोबल MRO हब बनाने में मदद करेगा। MRO का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। मेंटेनेंस, जैसे आपकी कार को टाइम टू टाइम ऑयल चेंज और इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एयरक्राफ्ट्स को भी रूटीन और शेड्यूल्ड मेंटेनेंस की जरूरत होती है। रिपेयर, अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम या फेलियर हो तो रिपेयर की जरूरत पड़ती है। ओवरहॉल, ओवरहॉलिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें एयरक्राफ्ट से उसके कंपोनेंट्स को रिबिल्ड किया जाता है। पुराने पार्ट्स को नया करके एयरक्राफ्ट को ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में लाया जाता है। इस प्रोसेस से एयरक्राफ्ट की लाइफ तो बढ़ती ही है एंड इट मीट्स द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इंडिया में डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए MRO सेक्टर काफ़ी बड़ा है। इन सर्विसेज के लिए हम पहले बाहर के देशों पर डिपेंडेंट रहते थे। पहले DGCA के स्टैंडर्ड्स यूरोपियन अथॉरिटीज के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते थे, जिसकी वजह से इंडियन MRO प्रोवाइडर्स को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करना मुश्किल होता था। स्किल्ड एविएशन टेक्नीशियंस की शॉर्टेज और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कमी भी MRO इंडस्ट्री के लिए बड़ी चैलेंज थी। इस चीज को बदलने के लिए मोदी सरकार ने 2021 में MRO गाइडलाइंस को अनाउंस किया, जो लोकल बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करेंगे और फॉरेन सर्विसेज पर डिपेंडेंसी कम करेंगे। इससे न सिर्फ खर्चा देश के अंदर रहेगा, बल्कि एविएशन सेक्टर का विकास होगा और नए रोजगार के मौके भी बनेंगे। यही नहीं, भारतीय वायुयान विधेयक बिल से इंडिया खुद एयरक्राफ्ट डिजाइन को अप्रूव और सर्टिफाई कर सकेगा। This bill has introduced the concept of state of design status that allows India to take on the responsibility of approving and certifying aircraft designs, which was previously handled by the other countries. अब इंडिया के पास अपनी खुद की कैपेबिलिटी है जो ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करती है, और ये आत्मनिर्भर भारत को और भी मजबूत बनाती है। I feel the need for speed. हाँ बिल्कुल, इंडिया सिविल एविएशन इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग विद स्पीड, स्पिरिट एंड सॉल्यूशंस। 2035 तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग एयर ट्रैवल कर पाएंगे। बढ़ती डिमांड के साथ एयरपोर्ट्स की संख्या 157 से बढ़कर 230 से ज्यादा हो जाएगी, जो देश के रिमोटेस्ट लोकेशंस को करेगी कनेक्ट। पीएम मोदी का तो विजन है इंडिया को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाना, ताकि देश का हर आम नागरिक दुनिया के हर कोने तक आसानी से पहुंचे। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और फ्यूचर में हम देख सकते हैं एक उभरता हुआ नया सेक्टर, इंडिया का ड्रोन इंडस्ट्री, जो ग्लोबल हब बनने के पोटेंशियल रखता है। ये इंडस्ट्री 2030 तक $6.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और इसका ग्लोबल मार्केट शेयर 7% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा फ्यूचर का ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा टेक सेवी और इको फ्रेंडली, विद मोर ग्रीन एयरपोर्ट्स, विद नेक्स्ट जेन इंफ्रा एंड सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस। हमारा देश अभी 100% ग्रीन एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। आज के दिन हमारे देश में टोटल 66 एयरपोर्ट्स हैं जो 100% ग्रीन एनर्जी पर चलते हैं। ये विजुअल्स किसी गार्डन या पार्क की नहीं है, ये है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा टर्मिनल। इस टर्मिनल का हर कोना आपको नेचर के करीब ले आता है। इसका पूरा इनोवेटिव एयरपोर्ट डिजाइन इज मेड आउट ऑफ बैम्बू। यही नहीं, 2023 में यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड केम्पेगौड़ा टर्मिनल 2 एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स। और दिल्ली एयरपोर्ट बन गया है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। वी आर मूविंग टुवर्ड्स सोलर पावर्ड एयरपोर्ट्स टू। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अ नोटेबल एग्जांपल बीइंग फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। पायलट लाइसेंसेस की बढ़ोतरी हो या नए एयरलाइंस की एंट्री, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो या सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, MRO इंडस्ट्री हो या आम नागरिक की बढ़ती डिमांड, भारत का एविएशन सेक्टर वाकई में हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सपना पूरा करने की दिशा में बढ़ चुका है। एंड इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम द लीडिंग एविएशन मार्केट्स, क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सच में स्काई इज द लिमिट फॉर इंडियन एविएशन। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे माईगव के वाओ दिस इज अमेजिंग के साथ।